Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु के प्रिय भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from Exodus 2:23. हमारे ध्यान के लिए आज का पद्य निर्गमन 2:34 से लिया गया है। Their cry came up unto God. उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। When we see the extended explanation of this verse, जब हम इस पद्य की विस्तृत व्याख्या देखते हैं Exodus 2:23 marks a significant shift in the narrative. तो निर्गमन 2:30 कथा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। Why? क्यों? Till the time we are hearing about the personal story of Moses उस समय तक हम मूसा की व्यक्तिगत कहानी के बारे में सुन रहे हैं and moving from the personal story of Moses to a broader plight of the Israelites in Egypt, now we see. और मूसा की व्यक्तिगत कहानी से आगे बढ़कर मिस्र में इसराइलियों की व्यापक दुर्दशा की ओर बढ़ते हुए अब हम देखते हैं। And this verse tells us that during a long period, the Pharaoh who sought to kill Moses died. और यह पद्य हमें बताती है कि एक लंबे समय के दौरान फिरौन जो मूसा को मारना चाहता था मर गया, But the suffering of the Israelites continued. लेकिन इसराइलियों की पीड़ा जारी रही। They groaned under the weight of their slavery and cried out for help. वे अपनी गुलामी के बोझ तले कराह उठे और मदद के लिए पुकारने लगे। So their cry, driven by the harshness of their bondage, rose up to God. इसलिए उनकी गुलामी की कठोरता से प्रेरित होकर उनकी पुकार परमेश्वर तक पहुंची। And this verse highlights the intense suffering of the Israelites and the beginning of God's response to their affliction. और यह पद्य इसराइलियों की तीव्र पीड़ा और उनके कष्टों के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया की शुरुआत को उजागर करती है। It sets the stage for the divine intervention that God will follow. यह ईश्वरीय हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार करता है जिसका पालन परमेश्वर करेगा। Now God is going to begin to fulfill his promises to Abraham, Isaac and Jacob. अब परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए गए अपने वादों को पूरा करना शुरू करने जा रहा Now है। we are going to see the historical context. अब हम ऐतिहासिक संदर्भ को देखेंगे। Exodus 2:23 is rooted in the period of Israelites' enslavement in Egypt, which lasted for several centuries. निर्गमन 2:30 मिस्र में इसराइलियों की गुलामी की अवधि पर आधारित है जो कई शताब्दियों तक चली। And after the death of the previous pharaohs, और पिछले फिरौन की मृत्यु के बाद a new king came to power. एक नया राजा सत्ता में आया, But the oppressive conditions under which the Israelites lived, they did not change. लेकिन इसराइलियों के जीवन की दमनकारी परिस्थितियां नहीं बदली। The Israelites were forced into brutal labor. इसराइलियों को क्रूर श्रम करने के लिए मजबूर किया गया। They have to build cities and working in the fields under harsh conditions. उन्हें शहरों का निर्माण करना पड़ा और कठोर परिस्थितियों में खेतों में काम करना पड़ा। Their suffering was not just physical, it is both spiritual and emotional. उनकी पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह आध्यात्मिक और भावनात्मक दोनों थी। As they were separated from the land God had promised to the ancestors and were living in a foreign land under cruel rulers. क्योंकि वे उस भूमि से अलग हो गए थे जिसका वादा परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से किया था और क्रूर शासकों के अधीन एक विदेशी भूमि में रह रहे थे। The mention of the king's death is significant because it marks a potential turning point in the political landscape of Egypt. राजा की मृत्यु का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिस्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक संभावित मोड़ को चिह्नित करता है। However, for the Israelites, the change in leadership brought no relief from their suffering. नेतृत्व में परिवर्तन से इसराइलियों को कोई राहत नहीं मिली। The period of groaning and crying out to God reflects their desperation and their deep need for deliverance. कराहने और परमेश्वर को पुकारने की अवधि उनकी हताशा और मुक्ति की उनकी गहरी आवश्यकता को दर्शाती है। This is the history. यह इतिहास है। But when we see from theological point of view, लेकिन जब हम धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं Exodus 2:23 underscores the power of prayer तो निर्गमन 2:30 प्रार्थना की शक्ति को रेखांकित करता है and God's attentiveness to the cries of his people. और अपने लोगों की पुकार के प्रति परमेश्वर की चौकसी। The Israelites groaning and their cries for help represent not only their physical pain but also their spiritual longing for freedom. इसराइलियों का कराहना और मदद के लिए उनकी पुकार न केवल उनके शारीरिक दर्द को दर्शाती है बल्कि आजादी के लिए उनकी आध्यात्मिक लालसा को भी दर्शाती है। And God is going to fulfill his promises. और परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने जा रहा है। So they are asking, Lord, you fulfill the promises. It is a spiritual matter. इसलिए वे पूछ रहे हैं, आप वादों को पूरा करें। यह एक आध्यात्मिक मामला है। So this verse reminds us that God hears the cries of his people even when it seems like deliverance is delayed. इसलिए यह पद्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है, तब भी जब ऐसा लगता है कि उद्धार में देरी हो रही है। So it highlights God's compassion and his commitment to justice. इसलिए यह परमेश्वर की करुणा और न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। He is not indifferent to suffering but is moved to action by the pleas of those in distress. वह दुख के प्रति उदासीन नहीं है
बल्कि संकट में पड़े लोगों की विनती सुनकर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होता है। This verse also speaks to the timing of God's intervention. यह पद्य परमेश्वर के हस्तक्षेप के समय के बारे में भी बताता है। Although the Israelites had been suffering for a long time, हालांकि इसराइली लंबे समय से कष्ट झेल रहे थे, God's plan was unfolding according to his perfect timing. लेकिन परमेश्वर की योजना उनके सही समय के अनुसार सामने आ रही थी। Period of groaning was not wasted. कराहने का समय व्यर्थ नहीं गया। It prepared the Israelites for the deliverance that was to come, इसने इसराइलियों को आने वाले उद्धार के लिए तैयार किया and it demonstrated the depth of their need for God. और इसने परमेश्वर के लिए उनकी जरूरत की गहराई को प्रदर्शित किया। Exodus 2:23 serves as a literary pivot in the narrative, transitioning from the personal story of Moses to the collective experience of Israelites. निर्गमन 2:23 कथा में एक साहित्यिक धुरी के रूप में कार्य करता है, जो मूसा की व्यक्तिगत कहानी से इसराइलियों के सामूहिक अनुभव में परिवर्तित होता है। The verse is marked by a sense of escalation. The suffering of the Israelites has reached a critical point. इसलिए इस पद्य में वृद्धि की भावना को दर्शाया गया है। इसराइलियों की पीड़ा एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गई है, Escalation, the suffering is increased, इसलिए पीड़ा बढ़ती जा रही है and their cries have become so intense that they ascend to God. और उनकी चीखें इतनी तीव्र हो गई हैं कि वे परमेश्वर तक पहुंच गए। The language used is groaned. इस्तेमाल की गई भाषा कराह रही है। They cried out, वे चिल्लाए and the cries went up. और चीखें उठने लगी। This is all emotional and powerful language conveying the intensity of their pain and the urgency of the need of their deliverance. यह सब भावनात्मक और शक्तिशाली भाषा है जो उनके दर्द की तीव्रता और उनके उद्धार की आवश्यकता की तात्कालिकता को व्यक्त करती है। The mention of the Pharaoh's death also creates a sense of anticipation. फिरौन की मृत्यु का उल्लेख भी प्रत्याशा की भावना पैदा करता है। It hints that change is on the horizon, not just politically but spiritually. यह संकेत देता है कि बदलाव क्षितिज पर है, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी, Because God is moving in response to the suffering of his people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की पीड़ा के जवाब में आगे बढ़ रहा है। So this verse sets a stage for the dramatic events that are going to follow. इसलिए यह पद्य आगे आने वाली नाटकीय घटनाओं के लिए एक मंच तैयार करता है। That is the God's call of Moses यह मूसा को परमेश्वर द्वारा बुलाया जाना है and the eventual exodus of the Israelites from Egypt. और अंततः इसराइलियों का मिस्र से पलायन। All these things are going to happen very shortly. ये सभी बातें बहुत जल्द होने वाली हैं। So there are supporting verses in other portions of the Bible that the Lord hears the cries of his people. तो बाइबल के अन्य भागों में भी इस बात का समर्थन करने वाले पद्य हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की पुकार सुनता है। Yeah, Psalm 34:17, कीर्तन 34:17, Exodus 3:7, निर्गमन 3:7, James 5:4 like that. जेम्स 5:4 जैसे पद्य। So what this verse means to a Christian today? तो आज एक ईसाई के लिए इस पद्य का क्या मतलब है? For Christians today, आज ईसाई के लिए Exodus 2:23 is a powerful reminder that God hears our cry. निर्गमन 2:3 एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है। Yeah, even when it feels like we are in the prolonged period of suffering or waiting, yet he hears. यहाँ तक कि जब ऐसा लगता है कि हम लंबे समय से पीड़ा या प्रतीक्षा की अवधि में हैं, तब भी वह सुनता है। What does it mean? इसका क्या मतलब है? This verse encourages believers to persist in prayer, यह पद्य विश्वासियों को प्रार्थना में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। trusting that God is attentive to our need. ये बताती है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों के प्रति सजग है। We must believe that he will act in his perfect timing. हमें विश्वास करना चाहिए कि वह अपने सही समय पर कार्य करेगा। It also serves as a reminder that God is not distant or uncaring. यह हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है और न ही हम पर कोई ध्यान देता है। He is deeply concerned with the injustices and pain we experience, वह हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले अन्याय और दर्द से बहुत चिंतित है and he is faithful to intervene according to his will. और वह अपनी इच्छा के अनुसार हस्तक्षेप करने के लिए वफादार है। So this verse also challenges to be sensitive to the suffering of others and to lift up their needs in prayer. इसलिए यह पद्य दूसरों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और प्रार्थना में उनकी जरूरतों को उठाने की भी चुनौती देती है। Just as the Israelites groaned under the burden and cried out unto God, ठीक वैसे ही जैसे इसराइली बोझ के नीचे कराहते थे और परमेश्वर को पुकारते थे, and we are called to intercede for those who are in distress. और हमें उन लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए बुलाया गया है जो संकट में हैं। We must trust that God hears and responds to the prayers of his people. हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है और उनका जवाब देता है। So this verse reflects the loving nature of God. इसलिए यह पद्य परमेश्वर के प्रेमपूर्ण स्वभाव को दर्शाती है। He is compassionate and responsive to the cries of his people. वह अपने लोगों की पुकार के प्रति दयालु और उत्तरदायी है। God's love is evident in his attentiveness to the suffering of the Israelites. परमेश्वर का प्रेम इसराइलियों की पीड़ा के प्रति उसकी सजगता में स्पष्ट है। He hears their groans. वह उनकी कराह सुनता है
and he is moved to act on their behalf. और वह उनकी खातिर कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। Oh, this demonstrates that God is not indifferent to human pain. तो यह दर्शाता है कि परमेश्वर मानवीय पीड़ा के प्रति उदासीन नहीं है, Rather, he is a loving father who listens and cares deeply about the well-being of his children. बल्कि वह एक प्रेमपूर्ण पिता है जो अपने बच्चों की भलाई के बारे में गहराई से सुनता है। His love is patient yet powerful, उसका प्रेम धैर्यवान होने के साथ साथ शक्तिशाली भी है, and he works out his plan for deliverance in the midst of their suffering. और वह उनके दुखों के बीच में उद्धार के लिए अपनी योजना को कार्यान्वित करता है। So, how this verse connects to Lord Jesus? तो यह पद्य परमेश्वर यीशु से कैसे जुड़ता है? Yeah, it foreshadows the ultimate deliverance that would come through Jesus Christ. यह यीशु मसीह के माध्यम से आने वाले अंतिम उद्धार का पूर्वाभास देता है। Just as God heard the cries of the Israelites and delivered them from slavery in Egypt, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने इसराइलियों की पुकार सुनी और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, He hears the cries of humanity and sent Jesus to deliver us from the bondage of sin. उसने मानवता की पुकार सुनी और हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु को भेजा। Jesus is the fulfillment of God's promise to deliver his people, यीशु अपने लोगों को छुड़ाने के परमेश्वर के वादे की पूर्ति है। provided not just temporary relief but eternal salvation. उसने न केवल अस्थायी राहत प्रदान की बल्कि अनंत उद्धार भी प्रदान किया। Jesus himself experienced suffering and cried out to God. यीशु ने खुद भी दुख झेला और परमेश्वर को पुकारा। What does it mean? इसका क्या मतलब He है? fully understands our pain, वह हमारे दर्द को पूरी तरह समझता है, and the mediator through whom we can approach God with our needs. और वह मध्यस्थ है जिसके जरिए हम अपनी जरूरतों को लेकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं। Hebrews 4th chapter 15-16 says so. इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद्य 16 में ऐसा कहा गया है। So, dear brothers and sisters, तो प्यारे भाइयों और बहनों, are you going through troubles today? क्या आप आज परेशानियों से गुजर रहे हैं? Cry unto God. परमेश्वर को पुकारें, He will answer. वह जवाब देगा। May God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रिय स्वर्गीय पिता, our gracious God, हे दयालु परमेश्वर, when the Israelites were in bondage, when they cried unto you, thou hast heard their groaning. जब इस्राएली गुलामी में थे, जब उन्होंने आपकी दुहाई दी तो आपने उनकी कराह सुनी। Thou art a prayer hearing and prayer answering God. आप प्रार्थना सुनने वाले और प्रार्थना का उत्तर देने वाले You परमेश्वर are हैं। not indifferent to human pain. आप मानवीय पीड़ा के प्रति उदासीन नहीं हैं। O Lord, you also underwent that pain. हे परमेश्वर, आपने भी उस पीड़ा को झेला है। O Lord, we are praying for the dear ones. O Lord, we do not know their troubles, but they are not happy. We are praying for such people. हे परमेश्वर, हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम उनकी परेशानियों को नहीं जानते, Not only they are suffering physically, they are suffering spiritually and emotionally. लेकिन वे खुश नहीं हैं। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी पीड़ित हैं। Lord, physically, oh Lord, they are suffering right from morning till evening. हे परमेश्वर, शारीरिक रूप से वे सुबह से शाम तक पीड़ित रहते हैं। Emotionally, we do not know where the mother is, where the child is, they are separated. भावनात्मक रूप से हम नहीं जानते कि माँ कहाँ है, बच्चा कहाँ है, वे अलग हो गए हैं। That is their emotional condition. यही उनकी भावनात्मक स्थिति है। And when we see spiritually, और जब हम आध्यात्मिक रूप से देखते oh हैं, Lord, they are far from their own land. हे परमेश्वर, वे अपनी भूमि से बहुत दूर हैं, They are far from the temple. वे मंदिर से बहुत दूर हैं। Oh, that is the condition of the people who are in Babylonian exile. बेबीलोन में निर्वासित लोगों की यही स्थिति है। Now in Egypt, they have not gone to their promised land, मिस्र में वे अपने वादा किए गए देश में नहीं गए हैं, but they have done the good thing. लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है। They cried unto you. उन्होंने आपकी दुहाई दी है। They believed that you are the Redeemer. उन्होंने विश्वास किया है कि आप ही मुक्तिदाता हैं। Thank you for answering their prayer. उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए आपका Our धन्यवाद। dear ones also may cry unto you. हमारे प्रियजन भी आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। Man cannot solve our problem. मनुष्य हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। बाप Lord, you speak to us. परमेश्वर, आप हमसे बात करते You हैं, answer our आप prayer. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। We do pray in the prayer hearing and prayer answering name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम अपने परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं, जो सुनता है और प्रार्थना का उत्तर देता है। Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।